Assalamu alaikum Faraz. Thank you so much for joining this session. Walaikum salam, Umair. Thank you for having me. It's my pleasure to have you on the session. So basically, having these sessions is to get as much knowledge from industry professionals and creative professionals because a lot of time in our field, it's basically you need to also understand कि आपको किस तरीके से ग्रो करना है इसमें कोई ऐसी ट्रेजेक्टरी या कोई रोड मैप बिल्कुल सीधा सीधा नहीं होता कि बिल्कुल. आप या तो फाइनेंस या बैंक मैनेजर या इस तरीके की किसी चीज में लग गए और आपने जिंदगी भर वही करना है ठीक है सो विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल थिंग्स अकॉर्ड इन योर सेशन एज वेल बट बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई विल बी हैप्पी इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ हाउस लाइफ हाउस एवरीथिंग एंड व्हेन वी स्टार्ट द सेशन Okay, so first of all, once again, thank you for having me over, Umair. And I've been following your series, and you're doing a fantastic job with, the diversity of people that you've been interacting with, and the kind of various topics that you've been touching upon. So now today I'm under the spotlight, so I hope I am able to share some stuff which is, worth your time as well. So I'm basically an independent marketing consultant. That's my first tag, usually associated with me in most of the people I talk to or rooms I walk into. The next tag that I'm associated with is being a corporate trainer, and by that I mean a diverse set of trainings ranging from, happiness and well-being to leadership, employee experiences, all the way to um, talking about how to build on your brand, your product, your marketing curves, et cetera, et cetera, et cetera. So that's all under the umbrella of corporate trainings. And last but not the least, there's another tag which a lot of people, especially on LinkedIn, they think that that is my first thing or the core that I do, which is technically not. So I think I'm kind of working on that a little more. That's stand-up comedy. So basically, in the last 15 years, I've been associated with marketing and advertising core, at the core of it. And then stand-up actually came first after that, and these two married together got into corporate training. So this is how it has been for me. And Alhamdulillah, things are good. I wouldn't say that it's a hunky-dory journey being an independent consultant or doing your own thing full time because people think that it's a lot of fun. Yes, it is, but it comes with its own catches. And I mean, yes, you do your hard work when you're doing a job. That's another kind of work that you're doing. But when you're doing your own thing, you're literally wearing all kinds of hats for yourself, by yourself, etc., etc. So yeah, that's pretty much a little summary of fair what all is up. fair enough I think thank you so much first of all Faraz for sharing all your journey in a minute of a cycle क्योंकि a lot of time if I talk about a marketer or if I talk about someone who is doing um, a very different path क्योंकि what I believe is कि our generation और generation before our like हमारे अम्मा अब्बा उनको ये हजम करने में थोड़ा टाइम लगता है कि यार हाउ यू गोना अर्न ठीक है मतलब ठीक है Mm, पैशन है स्टैंड अप कॉमेडी हो गया या ट्रेनिंग्स हो गई या ये सारी चीज हो गया लेकिन mm, उनके mm. पास ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ठीक है सो पहली चीज उसी पर डिस्कस करते हैं देन विल मूव फॉरवर्ड इज कि a lot of time we don't get right mentorship ठीक है um, Yes. and there is a very slight line between getting a mentorship and getting a right mentorship is मैं ये बहुत मरतबा सेशंस में बोल चुका हूँ और मैं वैसे भी कहता रहता हूँ कि यार what I believe is that my dad is not my mentor for my profession. My dad Yes. is my mentor for my life. ठीक है वो मुझे जिंदगी के बारे में जरूर मेंटोर करते हैं लेकिन प्रोफेशन की जहाँ तक बात आती है उनको नहीं पता क्योंकि उनका प्रोफेशन और मेरा प्रोफेशन बहुत अलग था और आपको ये वही सेम चीज़ है कि आई वाज लिसनिंग अ पॉडकास्ट एंड फाइंडिंग आउट अरशद वारसी ने भी ये बात कही थी कि अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसकी इज्जत करें इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो आपको बिल्कुल आपको हर चीज़ सिखा सकते हैं आप उससे हर चीज़ सीख सकते हैं Mm, mm, mm. दिस इज व्हाट आई बिलीव कि ये चीज़ हमारे अंदर बहुत अलग तरीके से थी ठीक है और जेनजीज आर टेकिंग इट इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन सही है Yeah. आई एम नॉट सेइंग कि उनके पास मेंटोर्स हैं या नहीं है ठीक है बट Mm, according to your experience you are in the field for more than a decade now mashallah and you're mm, working in a different thing you have worked for mncs you have worked for agencies you have worked for direct clientele you have worked for your own self as well तो आपको क्या लगता है एक राइट मेंटोरशिप इंसान को क्यों कर ले क्या किस किस हद तक बेहतर कर सकती है बिकॉज आई पर्सनली बिलीव क्या ठीक है आपके स्टार्टिंग ऑफ योर करियर में योर मेन फोकस शुड बी मनी और मैं इसको mm, डिनाई नहीं कर सकता कि इकोनॉमिकल फैक्टर्स को देखते हुए आपको
जब तक आपके पास आपकी नेसेसिटी पूरी नहीं होती तब तक आप इतना एक्सपोजर वगैरह ये सब चीज़ें कहने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है, हम्म। बट नो वन कैन बिकम अ फिलोसफर अनटिल और अनलेस ही इज समथिंग, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट अ राइट मेंटोरशिप कैन डू टू अ पर्सन, ठीक है, डू यू थिंक दैट जनरेशन शिफ्ट, ठीक है, उसके अंदर ये बहुत बड़ा मेंटोरशिप का ही पार्ट है क्योंकि अब उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता है, क्योंकि अगर मैं हम्म। बात करता हूँ जेनजीज की तो जेनजीज knows a lot of things because of millennials, तो उनको उसकी रियलिटी ही पता है। हम शायद पहले पर्दे में रहते थे और हमें चीज़ें पता होती थी लेकिन उनसे बात नहीं करना चाहते थे, जिस ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। So what do you think right mentorship can do for you? Okay, so I think within this question, there's multiple sub questions as well. So I'll try कि जितना इसको summarize करके with each section बता सकूं so कि आसानी हो for people to understand. I'll start with the last point that you mentioned जो आपने कहा कि Gen Z को relatively ज़्यादा knowledge है ये ज़्यादा वो है obviously because due to the information age that we are living in right now, the kind of access they have since they're born literally. किसी के हाथ में iPad है किसी के हाथ में phone है, multiple kinds of channels through which they're getting tons of information. ये एक बड़ी चैलेंजिंग चीज इसलिए हो जाती है बिकॉज सी नॉलेज होना इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है, मतलब उमेर कैन ऑल्सो बी रीडिंग अप ऑन टन्स ऑफ थिंग्स, राइट, बट बात पाई सारी घूम फिर के कि नो मैटर व्हाट जनरेशन यू आर, आपका एक्सपीरियंस कैन नेवर बी सुपरसीडेड बाय नॉलेज. योर एक्सपीरियंस ऑलवेज हैज टू हैव मोर वेटेज देन नॉलेज. उसकी वजह क्या है? वजह ये कि देखें, नॉलेज होना इज वन थिंग. आप एक कमरे में जाके नॉलेज होने की वजह से बहुत सारी बातें तो कर लेंगे, बट व्हेन पुश कम टू शव आपके पास जब कोई एक्चुअल कोई प्रॉब्लम लेके आता है, कोई बंदा है बंदी जिसको आपको सोल्यूशन देना है, if you don't have your hands-on experience about that thing, no matter what little information or knowledge you have about it, so then you can really not help them out, right? अब वो आप एक जॉब पे जाके कर रहे हैं, आप बोलें जी मुझे डिजाइन के बारे में बड़ा पता है, मैंने बहुत पढ़ा है, अच्छा ठीक है जी, डिजाइन किया किया है तुमने, वो आपने कुछ नहीं किया हुआ. तो अब आपकी नॉलेज कि आप बताएं जी पूरा मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं कि पूरा ये फला सॉफ्टवेयर कैसे चलता है, ये फला ऐप कैसे चलती है, आई नो इनसाइड आउट अबाउट इट, आई लिसन टू पॉडकास्ट, आई लिसन टू की नोट्स एंड एवरीथिंग, बड़ा भैया आप नॉलेज का एक भंडारा जैसे कहते हैं लेके आए. बट इफ यू हैवंट रियली ट्राइड योर हैंड आउट विद इट, व्हाट गुड इज योर नॉलेज टू मी इफ आई कांट utilize your expertise in an actual you would say application of a skill, right? सो अब बात हुई है कि हम लोग जब बहुत बड़े हो रहे थे और हमारी प्रीवियस जनरेशन का भी जो एक रद्द अमल था वो ये था कि यस आपने जैसे राइटली सो कहा कि जी योर फादर कैन बी अ गुड मेंटर फॉर योर लाइफ, बट आर दे रियली फॉर योर प्रोफेशन, अनलेस कि हाँ जी आपने प्रोफेशन भी वही लिया जो वाले साहब का था, या वाले साहब का एक बिजनेस है आपने उसको कंटिन्यू किया या आपने ज्वाइन किया उसको बड़ा किया. Yes, over there you can definitely have more hands-on wisdom जिसे हम कहते हैं from your mentor. So choosing your mentor is like choosing a right coach for going to a fitness place या कोई जिम वगैरह के लिए. Not every coach will be beneficial for you, ठीक है, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, सबसे पहले तो ये कि you have to be open to the idea of कि you need to find a mentor. अगर मेंटोर आपने ढूंढा ही नहीं है और आप कहें जी मैं खुद सब कुछ कर लूंगा, सेल्फ सस्टेन, आई हैव द इंफॉर्मेशन, आई हैव एवरीथिंग, आई कैन जस्ट गो एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन माय ओन. और ये एक और चीज है जिसको हम कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जिंदगी आपको सिखाती है, चाहे आप प्रोफेशन में हैं चाहे पर्सनल लेवल पे किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ट्रैवल के थ्रू कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं. इसमें होता यह है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको मिल जाता है एक मेंटोर से जरा बेहतर, कि ये चीज जो है तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, ये तुम्हें हेल्प करेगी नहीं करेगी. From their own experience they can tell you what all not to do so that you can curve a better model for your own life in whatever profession you are, whatever skill you're developing, and whatever personal attributes you're trying to build for yourself, right? ये चीज का एक बहुत क्लियर डिफरेंस हमें नजर आता है कि अब जो अनफॉर्चुनेटली मास मेजोरिटी ऑफ जेंजीज है, यू कांट बी टैगिंग ऑल ऑफ देम, आई वुड से कि exceptions are there, but as a overall mindset ये है कि yes we know that we what we want, हमें पता है हमें क्या चाहिए, हमें कितना काम करना है, हमें क्या चीज परस्यू करनी है, great. But if you don't have your direction, और वो direction usually आपको बेहतर जो मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्शन सिर्फ आपको मेंटोर से मिलेगा, बट बेहतरी के साथ एक आपको अच्छा एंगल मिल जाता है व्हेन यू अटैच विद द मेंटोर फर्स्ट, कि यू नो कीप सीकिंग द काउंसिल ऑन थिंग्स दैट यू डूइंग. आप उसमें सही करेंगे, आप गलत करेंगे, आप बहुत गलतियां करेंगे, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू हैव सम सेंस ऑफ डायरेक्शन through which you'll be able to build a better arch for yourself. Now, the other thing that you mentioned was that there's a very thin line between finding a mentor and finding a good mentor for yourself. गुड मेंटोर के वैसे ही है जैसे एक चीज को
आप इस तरह से कि कोई रूल बुक तो है नहीं, यू डोंट हैव अ गाइडलाइन ऑन के कोई किताब हो जिससे हो जी फाइंडिंग योर मेंटर्स, दीज आर 5 थिंग्स आई शुड बी लुकिंग फॉर, नॉट नेसेसरीली। आपके मेंटोर्स यूजुअली कैसे होते हैं? मिसाल के तौर पे आपने भी जिक्र किया एडवर्टाइजिंग का, सो आई पर्सनली कोट माई सेल्फ। मैं एडवर्टाइजिंग के अंदर आई वाज नेवर श्योर ऑफ गेटिंग इनटू एडवर्टाइजिंग। आई हैपन टू हैव सम पीपल हु आई यूज्ड टू लुक अप टू इन टर्म्स ऑफ के यू नो इनकी पर्सनैलिटी क्या है, व्हाट ऑल दे डू, उनकी फील्ड वाज सेकेंडरी फॉर मी। So that was how I was looking at him. And then when जब उनके साथ ज्यादा उठना बैठना होता था, then they were like about 7 8 years much older than me. ठीक है, another generation तो नहीं कहूँगा, but borderline next generation थी। तो उन लोगों के साथ मेरा जो है वो एक डिस्कशन होता था कि यू नो व्हाट शुड आई बी डूइंग, मतलब आई एम नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट टू परस्यू एज एज अ प्रोफेशन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा मुझे, मैंने ऐसी स्टॉप ऑफ माइंड बोल दिया, मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें लोगों से बहुत इंटरेक्ट करना हो। अब ऐसे कोई फील्ड या प्रोफेशन कोई टैग करके तो नहीं थी इसके लिए, बट दे सेड यू नो व्हाट विल बी अ ग्रेट, उस जमाने में वर्ड यूज होता था क्लाइंट सर्विसिंग, व्हिच इज नाउ बेटर वर्ड फॉर इट, अकाउंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो तुम उसके लिए हो गए। अच्छा, मेरे माइंड में ये था कि क्लाइंट सर्विसिंग वो एक यहाँ पे जैसे कॉल सेंटर वालों के नहीं वो लगा होता है हेडफोन, इस तरह से एक जगह बंदा बैठ के जी अस्सलाम वालेकुम सर और गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू। मैंने कहा शायद इस तरह कोई काम, मुझे ना थोड़ा अजीब सा भी लगा कि यार ये लोग क्या बोल रहे हैं। Then I got a chance for working at an agency, advertising agency. It was an MNC agency, Ogilvy. उसमें एक internship का मौका मिला। उस internship पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ I met my first, I would say, advertising mentor। और आज तक वो मेरे, he's one of my, not just advertising now, एक professional level पे on a larger scale, he's one of my mentors। uh, may I quote names over here या हम लोग general बात कर लें? इट्स अप टू यू। मैं ना मैं उनको जानता हूँ और ना मुझे कोई फर्क पड़ता, बट दैट इज द, चलें। बट हम्म। क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि हम ना बोलें, ठीक है, या बोलें, That's fine। क्योंकि दैट्स हाँ। दैट्स योर, दैट्स देयर, और दैट्स योर प्राइवेसी So, इफ so इफ okay, I'll keep it that way। मैं इसलिए पहले पूछा था। Anyway, so जैसे एडवर्टाइजिंग में जब मैं जिस एजेंसी में एक इंटर्नशिप के लिए गया, वो जो मुझे एक वहाँ पे एक मेंटोर मिले, he proved to be a good mentor for me। You know why? Because number one, मेरा उनसे बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था। मतलब कोई दूर दूर तक ना मेरा कोई म्यूचुअल था कि किसी ने बोला यार ये लड़का है इसको रख लें अपने पास, देख लें कुछ काम से कर, नहीं। I just saw him, doing things a little different than how the rest of the people used to be doing work over there। तो मुझे ना जरा उनका वो डिफरेंस पहली चीज क्लिक किया था कि यार ये बड़ा अलग तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ही वाज आल्सो दैट persona which was kind of breaking the stigma of typical advertising। जो हम सुनते हैं भाई बड़े लेट नाइट आवर्स हैं और फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और इट्स ऑल हंकी डोरी एंड ग्लैमरस ऑन द आउटसाइड, बट आई सॉ हिम लिविंग अ गुड लाइफ विच इसमें वर्क लाइफ का भी उन्होंने अच्छा बैलेंस रखा हुआ था। आइडिएशन पे भी बहुत जोर देते थे, लोगों का जो टीम्स के अंदर जिस तरह ख्याल रखते थे एंड हेल्पिंग आउट पीपल, मुझे वो बड़ी अच्छी उनकी बात लगी थी। सो आई पिक्ड ऑन दोज थिंग्स। वो उस वक्त बिजनेस डायरेक्टर थे, मैं एक इंटर्न था, मतलब देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस ऑफ डेजिग्नेशन। अक्सर लोग तो इंटर्न के नाम भी नहीं याद रखते, ठीक है। बट उनसे मेरा जो रिश्ता जुड़ा वो ऐसा है कि आज तक एवरीथिंग दैट आई परस्यूड इन माय लाइफ, वेदर इट्स ऑन माय कंसल्टेंसी साइड, वेदर इवन व्हेन आई स्टार्ट माय स्टैंड अप एज वेल, तो हालांकि उनको कोई दूर दूर तक उससे नहीं था, बट ऑन द बिजनेस साइड ऑफ डूइंग स्टैंड अप ही वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि तुम किस तरह से चीज को पैकेज कर रहे हो एज अ प्रोडक्ट और वो। सो ही वाज वन ऑफ द अर्लियर एग्जांपल्स। देन लिटिल लेटर जब ये डिजिटल एज आ चुकी थी एंड काफी डिजिटल मार्केटिंग का हो रहा था, एंड आई ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग टू डिजिटल मार्केटिंग। So another mentor I had was the guy who gave me a chance to work in an MNC agency and kind of set up the digital department for over there within a lapse of two years। Within 2 years, मतलब पहले 2 साल पहले मुझे इस डायरेक्शन नहीं था, मुझे जिंदगी में करना क्या है। 2 साल में I was actually heading a department technically। So I was very young at that age to be able to do that, but वो trust इसलिए आया because he saw something which I was also not sure of। तो एक और चीज जो mentor बड़ा अच्छी करता है, it's about building that confidence in you जिसमें आपको अक्सर self doubt होता है। और वो आपको ऐसे, और एक अच्छे मेंटोर का वही होता है जब आपके वो पीछे पड़ जाते हैं ना, तो आप कहते हैं यार ये मेरी जान को ही आ गए, कि मतलब ऐसा क्या है, इनको सोच रहे हैं मेरे से नहीं होगा या मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कैसे। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, इट्स बिन ओवर अ डेकेड लाइक यू सेड, व्हेन आई लुक बैक, उन्होंने उस वक्त जो मुझे पिक किया था, वो जो मुझे चीजें करने को मिली, जो सीखने को मिली, जो मैंने टाइम उनके साथ बिताया, द काइंड ऑफ लर्निंग्स आई हैड, आज तक ही इज इन अनदर कंट्री। दैट मेंटोर जो दूसरे मैंने अपने चूज किए थे, he's in another country। He encouraged me to do things completely the opposite of what my initial mentor used to tell me। तो मैं ना इन दोनों को रखता था। I would seek advice on some things from him। I would seek advice on some things from him। I would tell him मैं ये कर रहा हूँ, कहेंगे यार तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। दूसरे कहेंगे अच्छा करके देख लो।
दोनों का विजडम एक ही था, लेकिन एक कह रहा है करके देख लो, फेल करोगे यू विल सी व्हाट यू हैव टू लर्न, दूसरे कह रहे हैं यार बेवकूफी कर रहे I हो, यानी think कि you're already I think this is one of the very important thing because as you said थे पहले आपका कोई और mentor था. This is also need to mention कि mentors can be changed and upgraded as per your lifestyle. एब्सोल्युटली, क्योंकि वो लोगों को ऐसा लगता है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है अगर आप 20 साल के होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी सोच, आपका करने की नजरिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है. इन 25 यू आर डिफरेंट, इन 30 यू आर डिफरेंट, आफ्टर 30 यू आर वेरी डिफरेंट. तो आई थिंक a mentor should be a representation of something that you wanted to do in your near future. ठीक है, एब्सोल्युटली। ताकि आप एक थॉट आउट रिस्क ले सके. आई वोंट से कि इट्स अ रिस्क. यस इट इज अ रिस्क क्योंकि जरूरी नहीं है, बट आई थिंक दिस इज वेयर एक्सपीरियंस काउंट. क्योंकि जब आपको कोई देख के बोलता है नहीं तुम कर सकते हो, और आपको आपके ऊपर लग रहा होता है कि आप नहीं कर सकते, बिकॉज दे नो things much better than you, because या it's not like a book कि उन्होंने 4 साल डिग्री में कोई चीज पढ़ी है. It's the experience that they have, and they know एब्सोल्युटली। people, they know people much better than what they know about themselves as well. So I think mentorship तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और it is a मेरा जो इस पे एक एड नोट करता हूँ कि ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि आई डू डिफरेंट थिंग्स, तो अब ऑब्वियसली एक मेंटोर जब होता है ना, तो पहले यूजुअली लोगों का होता है कि दे आर स्टिकिंग टू वन प्रोफेशन, वन फील्ड, एंड दे आर कंटिन्यूअसली जस्ट बिल्डिंग ऑन दैट, उसी में वो चॉइस ऑफ मेंटोरशिप हो जाए, इवॉल्विंग मेंटोरशिप कह लें जैसे आपने कहा। बट व्हेन आई गॉट इनटू स्टैंड अप, तो स्टैंड अप वाज जस्ट समथिंग जो मैंने ऐसे ही एक रैंडमली मुझे ख्याल आया कि यार मुझे कुछ करने का दिल चाह रहा है सेपरेट अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, एंड उन दिनों मेरा एमबीए भी चल रहा था साथ में वीकेंड्स पे। मैंने कुछ अपने लिए कुछ करना है, कुछ अपने टाइम के लिए, मतलब एज मच एज आई वाज एंजॉयिंग एडवर्टाइजिंग, मुझे थोड़ा सा एक था तो उसमें मुझे ये था कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी ना कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने वाली कोई चीज का प्रोफेशन में जाना था। दिस फेल्ट लाइक अनदर एवेन्यू विच वाज अ वेरी डिफरेंट एवेन्यू। और एडवर्टाइजिंग में हम मशहूर है, ये कहते हैं कि भाई जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, सो यू हैव टू बी स्लाइटली इन अ गुड वे, यहाँ से जरा ऊपर ना थोड़ा महवर आपका नहीं. वो होना चाहिए। एग्री ऑन द पॉइंट. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, सो एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते यार ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूं. ठीक है, हम्म। यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बहुत हम्म। सारी चीजें जो मुझे सही लग रही है नहीं लग रही, बट जो जिसके लिए बन रहा है वो किस तरीके से परसू कर रहा है. ठीक है, एब्सोल्युटली। दिस इज व्हाट आई डू. सेकंड थिंग केयर, हाँ, इट्स वेरी गुड टू डू समथिंग विदाउट एनी गोल प्लान कि नहीं मैंने इसके अंदर कोई चीज करनी. क्योंकि व्हाट आई सी इज के सही आप नौकरी कर रहे होते हैं एंड दिस इज द बेसिक. क्योंकि हाँ आपको एब्सोल्युटली। आपको स्पेसिफिक इनकम के लिए कोई ना कोई काम करना है. आप नौकरी हम्म। करें, हम्म। आप बिजनेस करें, आप कुछ भी करें, ठीक है, यू सॉर्टेड विद दैट, तो एटलीस्ट ट्राई टू मेक समथिंग ऑन योर फॉर योर सेल्फ दैट मेक्स यू हैप्पी. ठीक है, हम्म। दिस इज on the very first time when I started this gupshup session, it started off a very small idea, ठीक है, हम्म। and I thought okay fine करके देखते हैं, and then slowly and gradually I realized कि it's not only something that I like, but it's also something that I am learning a lot. ठीक है, हम्म। हम्म। till the date, if I open the first video till now, the confidence, the way of talking, the connection building, everything, because you never know, sometimes you start doing something without, क्योंकि जब आप किसी गोल के बगैर कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना, सो यू आर हम्म। मोर वेलकमिंग कि ठीक है यार बुरा है अच्छा है. या जब कोई गोल ही नहीं है तो ठीक है ले लेते हैं. सही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल आस्क मी यार व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गपशप सेशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर, मैंने कहा इट्स नॉट एन इंटरव्यू. ठीक है, मुझे जब तक मजा आ रहा है मैं तब तक कर रहा हूँ, बिकॉज इफ बिल्कुल। आई वांट टू बिकम अ यूट्यूबर तो मैं यूट्यूब पे करता. ठीक है, बट दिस इज बिल्कुल। समथिंग दैट आई रियलाइज कि लोगों ने कुछ ना करने के बहाने ढूंढे होते हैं. ठीक है, जस्ट टू दैट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ पुटिंग इट। या जस्ट टू अज्यूम व्हाट आई सी इज के 180 सेशन करने के बाद मैं यूएई में हूँ. मैंने कितने लोगों से बात करी है जो पाकिस्तान में, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, यूएस में है, हम्म। कनाडा में है. या मैं उनसे कभी जिंदगी में नहीं मिला. ठीक है, और अगर उनसे सवाल किए गए तो पता चला कि वो भी उन्हीं प्रॉब्लम से गुजरे जिनसे नॉर्मल इंसान गुजरे. ठीक है, सो बिल्कुल। दैट गिव्स यू एन आइडिया कि इट्स जस्ट अबाउट रीजन चेंज हो रहा है, बट इंसान उसी तरीके से चीजें देख रहा है. और देयर शुड बी समथिंग जो कि आप जस्ट फॉर अ फन करो, कि कुछ नहीं भी है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट
uh, doing small videos for myself, ठीक है, आई डोंट वांट अपलोड इट, बट यस अगले 10 साल बाद जब मैं उसको चला के देखूं या मैं अपनी मेमोरीज रिवाइंड करूं, तो देयर शुड बी समथिंग ना, मतलब कोई तो पैशन हो। हर बंदे के पास अलग बिल्कुल। अलग होता है, कोई 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 पीएस खेलना चाहता है, कोई जिम जाना चाहता है, कोई स्विमिंग करना चाहता है, बट एटलीस्ट कोई तो एक ऐसी चीज हो जिस जो आपको उस 9 घंटे की जॉब से हटाए। क्योंकि आपको आई आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आप बर्नआउट होना तब शुरू होते हो जब आपकी लाइफ का पैटर्न बिल्कुल सेम कर देते हो, ठीक है। आप पैसे मोनोटनी कमाते हो, किक्स इन। हाँ आप मोनोटनी किक्स हाँ इन। आप पैसे कमाते हो, आप फैमिली फैमिली को टाइम देते हो, आप पैसे कमाते हो, फैमिली को टाइम देते हो। बट व्हाट आई पर्सनली थिंक यार, कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हो, जिसमें कोई चीज़ सही गलत नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक फॉर यू इट्स स्टैंड या। अप, ठीक है। बिकॉज बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर नॉर्मल लॉजिकली बात की जाए, इट्स नॉट इंडिया, यहाँ पे स्टैंड अप कोई बहुत ही बड़े लेवल पर नहीं है, ठीक है। बेशक। बेशक। और जितने भी स्टैंड अप्स रहे हैं, अब या तो वो कोई और काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बट उन्होंने वो चीज एज अ फनी करी है, ठीक है, एटलीस्ट उनको तो खुशी मिल रही है। सो आई थिंक रेदर देन बिकम बीइंग ऑन द साइड ऑफ के जहाँ पे आप किसी भी चीज को बस जज करें, जस्ट बी ऑन दैट पॉइंट कि ठीक है, एक बंदा कर रहा है, उसको उसको खुशी मिल रही है, इट्स गुड, rather than judging on it. Okay, moving forward to another thing is, सो मैं आप कुछ पूछ, सॉरी, मैं फर्स्ट वाली में सिर्फ एक कंक्लूजन उस पर दे रहा था कि स्टैंड अप पे जो मुझे मेंटोरशिप मिली उसमें एक नई चीज और मिली थी विच आई लाइक टू शेयर। एंड ये अक्सर होता है, जैसे आपने एक और चीज कही ना भी कि कुछ चीजें आपको ऐसी करनी चाहिए जिसमें कोई गोल नहीं है, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। एंड मेरा पर्सनली विद टाइम एज एज आई ग्रो ओल्डर एंड स्पेंड टाइम इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आई रियलाइज के लाइफ में अगर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन खत्म हो जाती है ना, तो मोनोटनी को वेलकम आप वैसे ही कर रहे होते हैं। बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशन वो चीज है जो एक बंदा, जैसे लेट्स सपोज एक नौकरी पे होता है मिसाल के तौर पे, एंड आप एक काम कर रहे हैं, आपको उसकी तनख्वाह मिल रही है, एंड यू नो हाँ यार अच्छी जगह है, अच्छा काम है, अच्छा हुआ। एक टाइम बाद ऐसा होता है कि आपके पैसे भी सही लग रहे होते हैं, सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन काम में मजा नहीं आ रहा होता। उसकी वजह ये बिकॉज यू काइंड ऑफ कम टू अ कंफर्ट जोन विद इन योर ओन क्राफ्ट और इन योर ओन स्किल। तो लोग कहते हैं कि, जो आपने एक कहावत सुनी होगी काफी लोगों को, भाई स्टे हंग्री स्टे हम्बल। ये बड़े पावरफुल वर्ड्स हैं, because stay hungry means that you're continuously on the journey to learn. Now, how do you learn? Whether you're experimenting with things, whether you're trying new things taking up new courses, you're trying to do new experiences. It could be anything at all, right? तो एक तो वो है, और जो हम्बल किस लिए कहते हैं कि जहां तुमने सक्सेस को छू लिया, जहां तुम्हारे पैर जमीन से ऊपर उठने शुरू हो गए सक्सेस को छूते ही, वहां पे नीचे जरा स्टे ग्राउंडेड, यानी स्टे हम्बल, बिकॉज दैट विल कीप यू हंग्री एज वेल। द मोमेंट यू से हाँ जी मैंने अचीव कर लिया, आई हैव मेड इट, बस मुझे और कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। वहीं आपका डाउनफॉल कर्व, ये इंसानी फितरत में है, ये एक लॉ ऑफ नेचर है, ये ग्लोबली आप देखेंगे भी, जहां किसी ने इस चीज को अपनाया है, सक्सेस हो गई, बस आई एम कंप्लेसेंट विद माई लाइफ, वहीं उसको डिप्रेशन भी लग जाएगा, उसको डाउनफॉल भी होता है, दे स्टॉप डूइंग दैट थिंग एज गुड एज व्हाट दे यूज्ड टू बी, बिकॉज थिंक यार हमने तो कर लिया, ये आजकल लोगों को वैल्यू नहीं है इस चीज की, राइट? सो but I think, सो स्टैंड अप पे मुझे, सो आई वाज जस्ट शेयरिंग दिस पॉइंट, सॉरी, एम जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन दैट, शेयरिंग दिस पॉइंट इसलिए बिकॉज स्टैंड अप में मुझे जो मैंने एक मेंटोर पाए, वो इतने यूनिक एक पर्सनालिटी के, शख्सियत के मालिक हैं कि मैं उनके बारे में जितनी तारीफें करूं मेरे ख्याल से कम है, बिकॉज ही वॉज सच अ डाइवर्स प्रोफाइल हिमसेल्फ एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर। ये थिएटर का बंदा था, ठीक है, थिएटर जिसमें मैंने हार्डली टाइम लगाया जिंदगी में, स्कूल में कभी किया होगा। He came from that background and he got into stand up and he started doing stand up around a similar time and I did. लेकिन मैंने एक मेंटोर वो पाया जो सिमिलर टाइमलाइन पे स्टार्ट किया हुआ है, वो नहीं जो 5 साल 10 साल से, बट आई सॉ दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही ब्रॉट फ्रॉम स्टेज एंड नोइंग ऑडियंसेस। उस वजह से मैंने उनको बहुत ज्यादा, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में हमारी ना एक लंबी गप लगती है, जिसमें हम सिर्फ बात करते हैं अबाउट, अच्छा आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अपने शहर में, आप कौन से इवेंट्स कर रहे हैं, किस तरह की एक्सपीरियंस है, क्या। मैं उनकी कहानियां सुन रहा हूँ, वो मेरी कहानी सुन रहे हैं, मैं अपनी चीजें लगा रहा हूँ, आजकल एवरीवन गेट्स टू सी एवरीथिंग, ऑब्वियसली सोशल पे लगा रहे हैं, इंस्टा स्टोरीज पे लगा रहे हैं। तो मैं रात के 2 बजे सडनली उनसे कॉल पे बात होगी कि भाई आज इवेंट हुआ था, हाउ आर यू फीलिंग? Everyone else will be like, what an event, what a show, क्या बात है, whether. His first question is, what are you feeling? What's next? क्या सोच रहे हो, क्या कर? So these are things which keep you on that route, के ये आपने सोची ही नहीं होती, ये आपने कोई रोड मैप में बनाया नहीं होता, आप कहते हैं हाँ यार मैंने यहाँ शो करना है, मैंने यहाँ करना है, अच्छा ये शो अच्छा नहीं गया, तो चलो जी मैं स्टैंड अप छोड़ दूंगा, या तो ये होगा, या होता है नहीं यार मुझे और करना है। सो आई गॉट इन टू दैट सेमी प्रोफेशनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन। आपने एक और चीज जिक्र की थी कि इंडिया नहीं है, एंड आई बी आई एम इन एग्रीमेंट विद यू। हमारे यहाँ एज एन इंडस्ट्री उसके लिए वो बहुत लिमिटेड स्कोप इसलिए है फ्रॉम मेकिंग इट बिजनेस वायबल फुल टाइम के लिए,
बिकॉज आपके पास वो एवेन्यूज की कमी है पूरे पाकिस्तान में, राइट? आपके पास वो नेशन वाइड उतने आउटलेट्स नहीं है जितने में आप उनकी परफॉर्मेंसेस की फ्रीक्वेंसी रख सकें। मजा हमारी आवाम को बहुत पसंद है। मैं इस चीज से, क्योंकि कहते हैं ना हमारे यहाँ कॉमेडी का वो नहीं, मैं कहता हूँ भाई हमारी आवाम वो है, अगर पूरे नेशन में ब्लैकआउट हुआ था तो वो मीम बनाने पहले पहुंचे थे, उन्होंने चीखम चिल्ली या नहीं, परेशानी का और इजहार नहीं आपके किया पास था। और हमारे पास, मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हमारे पास मजा करने के लिए और कोई चीज है भी नहीं। मतलब पाकिस्तान में अगर हम्म, बात की जाए, और अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करूं, तो हमारे पास एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ फूड है। ठीक है। जी बिल्कुल। आप कुछ भी, कुछ किसी भी चीज को उठा के देख लोगे तो हर बिजनेस उसके अराउंड ही चल रहा है। जितने भी हम्म, व्लॉगर्स हैं वो फूड का ही काम कर, फूड की रील्स बना रहे हैं, फूड की चीजें खुल रही हैं, हर हम्म, दूसरे दिन आप किसी ना किसी गली कोने पे नया ढाबा खुल रहा होगा। जी। बिकॉज ना आपके पास फैमिली प्लेसेस हैं, ना सारी चीजें। और आई थिंक कॉमेडी इज वन थिंग जहाँ पे ना कोई ग्रेड सिस्टम नहीं होता। ठीक है। अच्छा। इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ वेरी रफ डे। ठीक है। आई गॉट टू सम प्लेस, मैंने आधा घंटा किसी बंदे को सुना। ठीक है, या कोई इंटरेक्शन हुआ। और यही हम नॉर्मली भी कर रहे होते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉमेडी को हटा दूं, आप 7 बजे के बाद, 9 बजे ऑफिस के बाद जब आप दोस्तों में बैठते हैं, तो आप कोई बहुत ही फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है। हाँ। एज फार एज अ कराची आइट, आई कैन पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान में जितना कराची के होटल पे बिजनेस बने होते हैं, इतने तो इंडिया की शार्क टैंक में भी नहीं बने होते। ठीक है। दैट्स द दैट्स ब- दैट इज समथिंग। मुझे लगता है कॉमेडी इसलिए अच्छी होती है, या स्टैंड अप कॉमेडी में अच्छा होता है कि आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। यस, एंड यू इट्स कैन ऑल यू अबाउट रिलेटेबिलिटी। हाँ यू ह्यूमर कैन का है ही है। हाँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, में जितने भी कॉमेडियंस को सुन रहा होते हैं, जितने भी हमें पसंद है, ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो नहीं होती। बस वो उस बात को करने का तरीका जानते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, एंड देन वी आर मेकिंग ह्यूमर ऑल्सो टू ऐड ऑन इट। कि सक्सेस की डेफिनेशन भी हर बंदे की अलग है। ठीक है। आई जी पर्सनली बिलीव जी। कि फॉर एग्जाम्पल, इफ फराज को लगता है कि वो सक्सेसफुल है, तो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों को, मैं हमेशा से कहता हूँ, हर इंसान को सीईओ नहीं बनना। ठीक है। हम्म 80% ऑफ द हम्म। पीपल जस्ट वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है। या 20% का दिमाग खराब होता है कि नहीं, वो कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज कर रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू पे द प्राइस फॉर एवरीथिंग। ठीक है। अगर आज कोई करोड़पति है तो उसने उतना ही बड़ा रिस्क लिया है। आपके अंदर अगर रिस्क की कैपेबिलिटी होती तो आप उस जगह होते। बट यू नीड टू रियलाइज कि पूरी दुनिया का निजाम इसी तरीके से, सक्सेस स्टोरी हर बंदे की अलग है। ठीक है। कोई दो बिल्कुल। लाख में खुश है, कोई 5 लाख में खुश है, कोई 50 लाख में खुश है, किसी को 1 करोड़ भी कम पड़ रहा है। ठीक है। बिल्कुल। सो आई आई पर्सनली बिलीव के आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे बंदे की, दूसरा बंदा कुछ भी करो, एंड दिस मेंटालिटी हम्म, चेंज आफ्टर आफ्टर 28-29 ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ठीक है। उससे पहले आई वॉज अ वेरी जजमेंटल कराची आइट पर्सन, कि हर किसी के अंदर उंगली करना, यार ये कैसा इंसान है। एंड देन आई रियलाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हम्म। इफ इफ आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है, या दैट इज फॉर माई सेल्फ, ठीक है, तो बस खुश रहो ना। क्योंकि क्योंकि हम पाकिस्तान में रहे हैं। पाकिस्तान में असल में बहुत सारी चीजें ना ब्रांड से अलाइन हुई हुई होती हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ही इज वेयरिंग, व्हाट शी इज वेयरिंग, व्हाट ही इज ईटिंग, व्हाट शी इज ईटिंग, कौन सा फोन है हाथ में, कौन सी गाड़ी है। ये बहुत सारी चीजें अलाइन है हमारी। हाँ, आप ये हम ये मैंने चीज देखी है कि दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉन्वर्जेशन। क्या इसकी वजह से आपका पूरा सर्कल डिपेंड करता है। ठीक है। बट आपको मटेरियल पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादा ही वो है, एंड आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ स्कर्ट अराउंड अ लिटिल ऑन द अदर साइड ऑफ व्हाट आई डू एंड हाउ आई गॉट इनटू इट। जो हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग का आप आई एम श्योर लिंक्डइन पे भी बहुत देखते होंगे, बट हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग इन कॉम्बिनेशन में बात इसलिए करता हूँ बिकॉज दे गो हैंड इन हैंड, ठीक है? और ये एक ऐसी चीज है जिसका एक्सट्रिंसिक से ज्यादा इंट्रिंसिक चीज है। इंट्रिंसिक है ही मतलब ये कि अंदर से है, ये आप में ऊपर से आके कोई ठूस नहीं सकता हैप्पीनेस आपको। अगर एक मिसाल के तौर पे आई बी कोटिंग सम स्टफ जो काफी कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं ऑफेंसिव लगे, बट आई एम स्टिल गोना से इट। मैंगो पार्टी करने से लोग खुश नहीं हो जाते टेम्परेरी, उस वक्त के खाने की फूड की वजह से जो आपको एक किक मिलती है, जो आपके अंदर एक डोपामीन रिलीज होता है, वो उस वजह से आपको सिर्फ हो रहा है। उसके बाद अगर बाकी ऑफिस का कल्चर टॉक्सिक है, अगर उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं आ रही हैं, उनकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही, उनका मैनेजर जो है वो बहुत बदतमीज है, टीम ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही, इंटरेक्शन लोगों की अजीब से होती है, सो ऑल ऑफ दैट एग्जिस्ट व्हाइल यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। ये आपने एक दिन बीच डे करा दिया, दीज थिंग्स आर गुड रिक्रिएशन एक्टिविटीज, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन लोगों की डिपेंडेंसीज जो है ना, उसकी वजह से देर इज अ टू वे चैलेंज इन कॉर्पोरेट्स, स्पेशली आज पाकिस्तान में ज्यादा ये चैलेंज है। आपने देखा होगा लेटली बहुत सारे लिंक्डइन पे भी आप पोस्ट देखते हैं,
कुछ कंपनीज जिनकी मुस्तकिल जॉब पोस्टिंग खुली हुई होती है, तो लोग कहते हैं यार उनकी हायरिंग बड़ी हो रही है, आप ये नहीं सोच रहे कि उसके से जो है उनके आइट्रेशन रेट बहुत ये ज्यादा है। ये तो तो ये तो उसकी ये तो वजह ये उसकी तो वजह मुझे। ये है कि आपका जो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसोसिएशन है ना, आपने जैसे कहा ना कि लोगों की जो सोच है वो कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स भी है कि भाई किसके पास कौन सी गाड़ी है क्या है, और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि भाई कोई बंदा 5 में खुश है, कोई बंदा 20 में खुश है, कोई बंदा करोड़ों में भी खुश नहीं है, राइट। तो देखें वो तो इंसानी फितरत हमारी है, जिसमें जन जर जमीन का जो बात की है वो इसी वजह से की है, राइट। अब उसमें हमारे यहाँ बिकॉज ऑफ दैट रीजन पीपल आर ऑल्सो इन दैट चेन ऑफ साइकिल के उसी में चले जा रहे हैं। तो उनको अगर थोड़ी देर के लिए, आप मिसाल देता हूँ, यू टेक समबडी, किसी को आप बोलें कि यार थोड़ी देर जाके टेक अ ब्रेक, जैसे ऑफिस में होता है, या आप अपने काम पे भी होता है, कहते हैं आई एम गोइंग फॉर अ 2 डे ब्रेक, कहीं करीब में ही मैं कोई, अब जैसे कराची में लोग अनफॉर्चुनेटली समंदर के अलावा जो है कोई चीज बची नहीं, सिंध में बंजर हो जाता है, या तो फिर चले जाएं और जगह, पंजाब में स्टिल इट्स लाइक वीकेंड आया चले जी लेट्स गो टू द माउंटेन्स, कहीं कुछ नहीं तो आप नथिया गली मरी तक चले गए। वो जो थोड़ी देर के लिए उस नेचर स्पेस में जाते हैं, उसमें कोई मटेरियल चीज नहीं है, उसमें कोई बातें उस तरह की नहीं होंगी, वो सिर्फ बैठ के वहां सांस भी ले रहा है ना, एंड दे नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट चिलिंग हैविंग चाय देयर। वो माइंडसेट शिफ्ट जो आता है वो टेम्परेरी होता है, देन दे कम बैक टू द रियलिटी, नहीं हमें ये भागम दौड़ करनी है, हमें ये करना है वो करना है। सो व्हेन आई टुक दिस अप एज अ प्रोफेशन मर्जर, मैंने लिया कि मैं कॉर्पोरेट से तो मैं आ ही रहा हूँ, आई नो द काइंड ऑफ पेन पॉइंट्स, आपने रिलेटेबिलिटी की बात की, तो स्टैंड अप के थ्रू तो मैं लोगों को ठंडा करा रहा हूँ कि ठीक है जी, यू नो वी कैन ऑल लाफ टुगेदर अबाउट इट। सड़क टूटी हुई है भाई, टूटी हुई है कराची की सड़कें, उस पे वो बड़े से बड़े, आपने टॉक शो पे भी किसी को सुन लिया वहां पे मेयर सिटी से बात करते हुए, उस तक ने बोला भाई खुदा के लिए सड़कें बना दो, गटर साफ करवा दो, लाइनें सही करा दो, पानी दिलवा दो। दीज आर बेसिक्स, राइट, बट वी स्टिल लाफ अबाउट इट बिकॉज ह्यूमर हमारा, यू नो दैट इट सुपरसीड्स द लॉजिक इन आवर हेड, क्योंकि लॉजिक हमें कहता है भाई तो स्ट्रेसफुल चीज है, ह्यूमर हमें कह रहा है कि हाँ यार हंसी लो, क्योंकि इस पे गुस्सा करके रोके क्या ही फायदा है, राइट। जो दूसरी चीज मैंने हैप्पीनेस एंड वेलबींग की ट्रेनिंग्स की बात की, उस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए हुआ बिकॉज आई फेल्ट के आई कुड मेक सम लिटिल डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑन स्टेज टू मेक पीपल लाफ। एंड व्हेन आई टुक दिस ट्रेनिंग साइड, तो मुझे लोगों ने बुलाया था पहली बार, एक्चुअली दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। मैंने खुद कहीं नहीं सोचा था कि मैं एक ट्रेनर भी बनूंगा, आई न्यू आई वाज गुड इन पब्लिक स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सिंस स्कूल, बट आई नेवर थॉट आई कुड गो ट्रेन पीपल। ये बड़ा फर्क होता है कि आप बोलते अच्छा हैं या आप ट्रेन कर सकते हैं, लोग कुछ आपसे सीख के जा सकते हैं नहीं। अगर 50 लोगों में 2 लोगों की लाइफ में भी मैंने थोड़ा सा चेंज लाया हो, तो आई थिंक आई कैन हैव अ गुड नाइट स्लीप, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये एक चीज मैंने इसीलिए ज्यादा परस्यू की, जो आपने भी बात की ना कि लोग अपना जो एक माइंडसेट बना लेते हैं कि बस ये जॉब करनी है, इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो चेस तो कभी खत्म नहीं होगा। आपकी कंटेंटमेंट पे आपने काम करना है, जो कि अब जाके लोगों को थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि जी वी हैव टू वर्क ऑन दिस, हमें ब्रेक इस तरह से लेना है, हमें अब आप कहते हैं लर्न टू से नो, जेन जी तो पहले ही आके नो पहले बोलता है तो हमें और गुस्सा भी आ जाता है। बट दैट ऑल्सो आई थिंक जनरेशन टू जनरेशन वो चीजें चेंज होती हैं, बट वो एक्सपीरियंस के हम्म। साथ ही आता है। आप जितना भी कह रहे हो हम्म। ना कि आप डे वन से किसी को नहीं कह सकते कि नहीं यार वो उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी या बात भी करें तो अगर हम हर जनरेशन का कर्व चेक करें तो हमारे माँ बाप को हमसे मसले थे, हमें अपने बच्चों से होंगे, उनको आपके बच्चों से होंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल है। क्योंकि मसला ये है कि एवरीवन वांट्स टू सी समवन कि यार ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे उतरे। ठीक है, नो वन हम्म। हैज द एबिलिटी कि यार वो ठीक है थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे कि सही है, मैं ये कर रहा था वो कोई और भी चीज कर सकता है, ठीक है, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो चीज आती रहेंगी। लेट्स बैक टू अनदर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज you being in a part of advertisement agency, MNCs and vice versa, ठीक है, मल्टीपल रोल्स मल्टीपल जॉब्स, ठीक है, बट एक चीज होती है जो इंसान कभी नहीं भूलता, दैट इज द फर्स्ट जॉब। ठीक है, या। क्योंकि फर्स्ट जॉब के अंदर ना आपको कुछ पता होता है कि करना क्या है, क्योंकि हम्म। हम जितना भी सीख लें, आप आईबीए ग्रेजुएट हुआ, खैर आईबीए नहीं कह सकते, आप आईबीए आईवीएस के ग्रेजुएट होते हैं तो फिर तो आप बहुत ही माइनॉरिटी में आते हैं, बट अगर आप सीबीएम इकरा या बाकी किसी यूनिवर्सिटी की ग्रेड हैं, ठीक है, तो सारे एक जैसे ही बच्चे, ठीक है, सबकी सीवियाँ, सब ये जितना भी कुछ है ना, ये बहुत ज्यादा सिर्फ नॉइज होती है। मुझे लगता है कि आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए, आपका ये ऐसा होना चाहिए, आपका वो ऐसा होना चाहिए। I have a very good belief on कि you only got a job when you are at the right time at the right position, that's it। ठीक है, आपकी सीवी में कुछ हो या ना हो, आपकी डिग्री में कुछ हो या ना हो, मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी जॉबें करी हैं जिसमें मैंने सीवी नहीं भेजी। मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारी जॉब करी हैं जहाँ पे मैंने पोर्टफोलियो तक नहीं भेजा। मेरी 7 साल के पूरे एक्सपीरियंस में आज तक किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी सीजीपीए कितनी है। तो आई पर्सनली बिलीव यू ओनली गॉट द जॉब व्हेन यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट पोजीशन। बट वो एक दिन की मेहनत नहीं होती, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। ठीक है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ठीक है, व्हेन यू गेट इनटू द मार्केट,
ठीक है, और फराज साहब उस 5-8 साल पुराने बच्चे को अगर आज वापस टाइम ट्रेवल करके जाएं तो क्या बोलेंगे कि बेटा आप ये 3-4 चीजें अगर सही कर लो ना फराज साहब, तो आप और आगे चीजें अच्छी कर सकते हैं। सो आई थिंक आपने एक और बहुत अच्छी चीज पे बात की है ना, इसमें आप यू कॉल इट इन एन एंगल ऑफ जस्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स के जॉब्स जिस तरह से आती हैं उसमें आपका रेज्यूमे और वो चीजें नहीं आती। आई वुडंट कंप्लीटली एग्री विद इट, पार्शियली एग्री करूंगा। उसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जिसमें यस इट्स अबाउट, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ब्रांडिंग की बात कर रहे थे कि आप अपने अपने खुद के ब्रांड को किस तरह से बनाते हैं, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ। तो your resume is a partial part of your portrayal. Obviously, the rest of the things are आपका ऑन ग्राउंड किस तरह से लोगों से इंटरेक्शन है, नेटवर्किंग में आप कैसे हैं, बहुत सारी और चीजें एट प्ले होती हैं। लाइक यू सेड, ओवर टाइम जैसे आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो भी आपके मायने रखता है। बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली बात, यस इट डज पार्शियली अप्लाई। अब उसमें एक और चीज ये है कि लोगों को जो रेज्यूमे बिल्डिंग और इन चीजों को बताया जाता है उसकी प्राइमरी वजह ये है because there's such a massive competition in every field that you go to, every field कि how do you become a differentiator for yourself कि आप stand out कर सकें, आप उस हजारों के फाइल में से वो 10 में से निकल के आ सके जिनमें से वो हम 5 को वो कंसिडर करें इंटरव्यूज के लिए, मिसाल के तौर पे, राइट। सो यू डू हैव पीपल स्ट्रेसिंग ओवर दैट बिकॉज बहुत सारे लोगों को वो अपनी 2 पर्चे में या एक पर्चे में बात बतानी भी नहीं आती सही से ना। सो वो जितने भी अच्छे स्टूडेंट्स हों, सीजीपीए भी आ रही है लेकिन उनका एक रेज्यूमे सही से नहीं बन के दे रहा, एक मिसाल के तौर पे, या ग्रेजुएट होके काम भी आई किया है आई बड़ा अच्छा काम किया है। आई एम एग्री ऑन योर पॉइंट, बस मैं ये कह रहा हाँ। हूँ कि हम्म। इट्स अ रैली रे, मतलब इट्स आपको कंबाइन चीजें इट करनी इज है। इट इज मतलब इट इज मैं, इट्स नॉट अ वन हाँ वन ट्रिक पोनी, कहते हैं ना वन ट्रिक पोनी नहीं है, इट हाँ हैज टू बी आई मल्टीपल एग्री, क्योंकि थिंग्स। हाँ। क्योंकि अलॉट ऑफ टाइम क्या होता है, अलॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल रीच आउट टू मी या मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है, देखिए जॉब जो है ना सही है, हम्म। उसमें हर चीज के कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं। आई थिंक इट्स लाइक अ 25 मार्क्स ऑफ अ टेस्ट, उसमें सीवी का 1 मार्क है, बोलने के 2 मार्क हाँ है, पोर्टफोलियो के तीन जी। मार्क है, ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स सारे, हाँ स्टेप्स के स्टेप्स के मार्क्स। मार्क है, इट्स अ मैथ्स पेपर, ठीक है। अब वो जो स्टेप्स के या मार्क्स है ना, उसमें उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको खुद प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है, और मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अब आप ये चीज देख सकते हैं फराज कि ट्वेंटी ट्वेंटी हम्म। फाइव के बाद, ठीक है, सीवी सिर्फ एचआर को चाहिए कि वो पोर्टफोलियो लिंक या लिंक्डइन पे खोल के देख ले तुम्हें, ठीक है। ऐसा ही है, क्योंकि ऐसा वो ही है। क्योंकि मैंने जितना जर्नली बात करी है, मैंने जितने एचआर से बात करी है, मैंने सबसे हम्म। पूछा तो उन्होंने बोला कि 15-20 सेकेंड इज द मैक्सिमम टाइम वी हैव, ठीक है। वो भी ज्यादा है क्योंकि ग्लांस होता है, लिटरली हाँ जस्ट अ स्कैन ग्लांस। हाँ, तो मैंने बोला हम्म। कि यार, मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा दिस इज ऑल बेवकूफ़ी, ठीक है, कि कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा पैटर्न होना चाहिए, एटीएस होनी चाहिए, इज जस्ट लाइक अ पर्सनल प्रेफरेंस, ठीक है। कि वो क्या ढूंढ रहा है, अगर तुम उसके हिसाब से बना सकते हो तो तुम्हारी सीवी सेलेक्ट होगी, ठीक है। ऐसा ही है, हाँ। हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमें अपने आप को कैसे सेल करना है, ठीक है, बट सेल्समैन का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सेल्समैन वो चीजें नहीं बताता जो उसको बतानी होती, सेल्समैन वो चीजें बताता है जो आपको सुननी होती है, ठीक है। सो आई पर्सनली बिलीव नो टेम्पलेट नथिंग वर्क्स इन अ वे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि फराज साहब इस चीज का बंदा ढूंढ रहे हैं और वो ये चीजों को ढूंढ रहे हैं, अगर मैं वो चीजें डाल दूंगा, ठीक है, तो वो पढ़ के मुझे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव, मैंने इतने सारे एचआर के प्रोफेशनल से पूछा, वंस दे रिव्यू अ प्रोफाइल, जिंदगी में कभी वो दोबारा प्रोफाइल रिव्यू नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस को उनका बॉस आगे बोले कि यार ये प्रोफाइल दोबारा देख लो, ठीक है। क्योंकि इतने इतना इतना इतने बंदों का सीवी, इतने बंदों का रेज्यूमे कि उनको अपनी केपीआई भी मैच करनी है, ठीक है। ये सारी चीजों के बावजूद यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो जब आप पहली मर्तबा किसी प्रोफेशनल कैरियर पे जाते हैं ना, तब आपको तब आपको खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि उसके पहली जॉब के बाद तो आपको पता चल जाता है बात कैसे करनी है, इंटरव्यू कैसे देना है। क्योंकि मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से मानता हूँ कि जॉब पे रहते हुए इंटरव्यू देना और बेरोजगार रह के इंटरव्यू देने में बहुत फर्क है, ठीक है। 100%, सौ ठीक है। फीसद है, बिल्कुल है। अ, और हम इस तरीके से बात करें, इकोनॉमिकल साइड पाकिस्तान कराची जैसा शहर में मैं बिल्कुल मन टू मन चल रहा हूँ, इस महीने की सैलरी आएगी तो इस महीने का बिल आएगा, मैं इस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम्म। कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें जो है ना, जब आपके बैक ऑफ द माइंड परेशानियां कम होती है ना, तभी आप ग्रो करते हैं, ठीक है। सो हाउ वाज अच्छा, योर, इसमें आई वुड बी वेरी रॉ विद यू अबाउट एंड राइटली सेड सो, जैसे कीपिंग योर इकोनॉमिक्स इन योर माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग ऑन थिंग्स, बट आई थिंक
कुछ चीजें जो मैं बोलूंगा इस बात पे कि ये बहुत बड़ा हाथ मेरे इनिशियली ऑब्वियसली पहली जॉब पे तो कोई मेंटोर था ही नहीं ना। पहला जॉब हम्म। तो मतलब जो मेरा जो कर्व बना हुआ ऐसे था कि आई स्टार्टेड विद एन इंटर्नशिप इन ओगिलवी एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंटर्नशिप मुझे उस जगह के लोगों से मतलब मेरी उनसे उनसे हो गई थी, उनको मैं पसंद आ गया था। इट वाज अ टू वे रिलेशन। बस बात ये थी कि हॉल अवेलेबल नहीं था, नहीं तो शादी हो जानी थी। आप बात समझ रहे हैं? तो वहां पे वैकेंसी नहीं थी। द थिंग इज दे वर सेइंग कि यार तुम मतलब योर हैंड्स ऑन, एवरीथिंग इज कूल, तुम्हारा रिव्यू भी अच्छा है। 2 महीने की इंटर्नशिप थी, उन्होंने 1 महीना एक्सटेंड करी कि यार एक प्रोजेक्ट शुरू किया था तुमने, उसका पूरा ब्रांड का कंप्लीट लॉन्च तुम्हारे सामने हो, ताकि यू गेट दैट लर्निंग। तो पहली शूट कैसी होगी, आउटडोर कैसे, पूरा 360 मीडिया प्लान कैसे जाता है, लेकिन वो बड़ा अच्छा एक वो था, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर का लॉन्च था पाकिस्तान में। तो दैट्स द केस स्टडी व्हिच माय अगेन द गाय हु आई चोज एज अ मेंटर, उन्होंने कहा था कि अगर कुछ नहीं कर रहे आप तो 1 महीना और एक्सटेंड कर दो प्लीज, ताकि आपका ये लर्निंग अच्छी मिल जाए, आपके लिए अच्छा होगा। अब वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे ना, तो मुझे वैसे ही एक था। मैंने जब उनसे कहा कि अच्छा मैं निकल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा लेट मी गिव यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उनकी। मैं ना खुश हो रहा उस वक्त, एक 22-23 साल का लड़का के एक लेटर आ रहा है इस पे निकला हुआ, तो ये तो भाई मतलब बस जन्नत की बशारत है ना, कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो लोग लगे हाथों मुझे हायर कर लेंगे ना, एक कॉन्फिडेंस वहां पहुंचा हुआ था। फिर अल्लाह मियां ने कहा जरा बेटा आओ रियलिटी पे। रियलिटी क्या थी एट दैट टाइम? अक्रॉस ऑल एजेंसीज एंड मोस्ट एजेंसीज, इनके नाम एटलीस्ट मुझे पता थे, उन सब में मैंने अप्लाई किया। उसमें एमएनसीज भी थी, उसमें लोकल भी थी, किसी में इस वक्त नहीं थी, सब में हायरिंग फ्रीज लगा हुआ था। अब उस हायरिंग फ्रीज की वजह से मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। फिर आई हैपन टू कम अक्रॉस दिस अदर फ्रेंड। ही सेड कि अच्छा मैं तुम्हें कहता हूँ तुम सब जगहों पर अप्लाई करो, किसी एक का भी है ना वेटिंग टाइम रखो, 3 हफ्ते वेट करो, कोई अगर जवाब दे दे, कहीं से कुछ नहीं आता, फिर मेरी कंपनी में आना, देन आई ट्रेन यू इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब हुआ ये कहीं से कुछ नहीं आया। मैंने कहा यार ये तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी एक नहीं, दो बिजनेस डायरेक्टर्स का है, और यू नो एवरीवन नोज मी बाय नेम, और एक इंटर्न को एक नाम से जानना बहुत मतलब मैं ना सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरा वो ये वाला था उसको ना, एक 22-23 साल का लड़का जिसका कोई क्योंकि मुझे सब कुछ आता नहीं था। मेरे फादर ने एक चीज मुझे बोल के घर से बताया था जाते हुए कि याद रखना, व्हेन यू गोइंग फॉर योर जॉब, फर्स्ट जॉब पे एटलीस्ट खास तौर पे, यू नीड देम दे डोंट नीड यू। रिमेंबर दैट पार्ट, यू नीड देम दे डोंट नीड यू। आई थिंक अब आपने अभी के इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपके अब्बू को अब ये कहना चाहिए कि हर जॉब पे यही याद रखो कि दे डोंट नीड। नहीं नहीं, तो मैं बता रहा हूँ आगे, आपने इत्तेफाक से अगली चीज बोल दी। ये अभी के टाइम ही, मैं पिछले 15 साल हो गए, एवरी जॉब दैट आई टुक मैंने माइंडसेट वही रखा है कि आई नीड देम दे डोंट नीड मी। लेकिन हाँ, जब मैं जॉब शुरू कर दूंगा देन आई शो देम दैट दे नीड मी, आई डोंट नीड देम। ये ये माइंडसेट पे ही आप फिर ड्राइव करते हैं अपने काम को, ऐसे कि आप प्रूव करते हैं, यू जो कहते हैं ना, यू प्रूव योर मेटल, यू हैव टू डू इट, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट, इसका मतलब है आपको खुद भी अंदर से जमीर आपको बता रहा था फराज साहब यहाँ पे दाल निकल रही, ये तो मैं ऐसे ही बस दिन में सुबह के 5 कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, काम हो रहा है, लेकिन आर यू रियली एडिंग वैल्यू? इट मीन्स कि तुम्हारा काम रिडंडेंट सा होने लग गया है, या तुम्हारे स्टेग्नेशन आ गई है, तुम्हारी लर्निंग नहीं बढ़ रही। सो मैं एक और एमएनसी को बताता हूँ जिसमें मैंने बहुत अच्छे काम, काफी अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स है, सब कुछ हुआ, लेकिन आई पर्सनली चोज टू रिजाइन फ्रॉम इट एट अ टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज गुड, क्योंकि कंफर्ट जोन आ गया था। वो ग्रोथ नहीं हो रही थी वहां पे। वहां पे जो डिपार्टमेंट था उसको वो फ्रीज हो गया था कि इससे बड़ा होने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनके फाइनेंशियली चैलेंज था, जो कुछ भी था। तो एवरी जॉब, मजे की बात आपने एक और चीज कही थी, जस्ट ऐड दैट इन, थोड़ा सा स्पोरेडिक हो रहा है बट आई एम कोट दैट इन। एवरी जॉब दैट आई हैव डन इन माय ऑलमोस्ट, तो खैर कंसल्टेंसी करते हुए साल हो गए, बट उससे पहले जितनी जॉब्स की मैंने, all the jobs that I did, I never applied to them. And all the jobs I never got were the ones I applied for. बात समझ रहे हैं? यानी मैंने जहां जहां एप्लीकेशन डाली, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आगे वो पोजीशन फ्रीज हो गई या डिले कर दिया, या जो कुछ भी था। लेकिन जो जॉब मेरे पास आई, पहली जॉब से लेके अभी लास्ट जॉब भी जहाँ पे बड़ी एक एमएनसी कंपनी थी, उस एमएनसी कंपनी की जर्नी मैं बताना चाहूंगा। एंड इफ यू वांट आई कैन कोट द नेम मतलब एज वेल। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपके अभी अभी आपने जो चीज बताई, इस हिसाब से तो मेरी बात ठीक है कि भाई हाँ, सीवी से कुछ नहीं मैंने क्या होता ना है पार्शली, मैंने हाँ, पार्शली इसलिए कहा था क्योंकि देखो, कि- जो क्योंकि सीवी आपने था वो कहीं किसी के पास पहुंचा भी था, मैं वो एग्री मैंने नहीं दिया था, बट दिस समबडी सेड यार दिस इज अ गाय यू शुड टॉक टू, मैं एंड मैं आई डिड नॉट इवन नो कि मेरा मैं रिकमेंडेशन गया देखिए हुआ है। तो मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि हम्म जॉब जो है ना, हम्म आई बिलीव कि जॉब इज, अभी के हिसाब से पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो हम्म, लोग ये कहते हैं कि इट्स मोर लाइकली कि सहरा में पानी ढूंढने जैसा है, ठीक है। बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स बहुत है, हम्म आपको कंपास यूज करना आना चाहिए, ठीक है। कि मुझे जाना क्या है, अगर वही वाली बात है ना, मैं और आप एक साथ सीधी रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, मैं लेफ्ट हम्म जा रहा हूँ, आप राइट जा रहे हैं,
ठीक है, लेकिन मैं लेफ्ट जा रहा हूँ कैलकुलेट करके, आप राइट जा रहे हैं बस फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ होगा, क्योंकि हम्म, हर किसी का एक्सपीरियंस हर जगह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैंने एक क्या कहते हैं बहुत अच्छी सीवी राइटर हायर करी। मैंने कहा यार मेरी सीवी लिख दे। ठीक है, एंड ये उस हम्म, वक्त की बात है जब मैं पाकिस्तान में था। ठीक है, ओके। एंड शी वाज राइटिंग दैट एंड शी इज ऑसम। मतलब शी, मतलब वो अपने काम में बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मेरा मेरी मेरी ट्रेजेक्टरी बहुत अलग है, तो मुझे पता ही नहीं कंटेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम हमें हम्म, कंटेंट दे दो, हम कॉपी पेस्ट करके लिख देंगे, बट वी आर नॉट इनटू दैट। बट शी इज हम्म, ऑसम इन दैट। वो सीवी आज तक कहीं पे नहीं दिखाई मैंने, क्योंकि अच्छा, ओके, उससे पहले ही मैं यूएई मूव हो गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद दोबारा मैं, पहले मैं अबू धाबी गया, अबू धाबी से मैं दुबई चला गया। ठीक है, बट देन आई रियलाइज कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज आपके काम एग्जैक्टली उस वक्त नहीं आ रही तो वो काम की नहीं है। बेशक, ये तो है। ठीक है, अब दैट जैसे इज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस शिद्दत से आपने अप्लाई करा था ना, तो आपको लग रहा था कि मेरे लिए वही सही है। ठीक है, हम्म, हो सकता है वो रिकमेंडेशन लेटर किसी चाचा मामा से होता 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 किसी और जगह गया और किसी ने बोला कि यार इसको बुला लेते हैं। ठीक है, हम्म, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जॉब आप ढूंढ रहे होते हैं तो आपको लगता है जॉब बहुत कम है, और जब जॉब आपको ढूंढ रही होती है देन यू रियलाइज। ठीक है। इट इज ये तो आई थिंक राइटली सेड। सो अभी जैसे 2025 पे आपने जब कहा कि अब ओवर टाइम ऐसा हुआ है कि अ लॉट मोर ऑफ दिस सिनेरियो हैज हैपेंड, कि जो लैटर है कि जॉब आपको ढूंढ रही होती है वो और ज्यादा हो भी गया। इसकी वजह ये है कि एज न्यूअर पीपल आर कमिंग इन नाउ, जो अगली जनरेशन आ रही है, चाहे वो किसी भी जगह से आ रही है, डिजाइन स्कूल से आ रही है, बिजनेस स्कूल से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, इवन ऑन इंजीनियरिंग स्कूल से मेरे बच्चों से मेरी इंटरेक्शन होती रहती है। आई गो फॉर वेरियस लेक्चर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। चक्कर ये है कि अब माइंडसेट ही वो हो गया है कि वो पढ़ाई के अंदर पहला साल हो या दूसरा साल, मतलब अभी वो ग्रेजुएट होने के आखिरी साल में बंदा सोचता है ना काम क्या करेगा, उससे पहले तो वो पढ़ाई में लगे होते हैं, बस कितने ना से निकल जाए, कोर्सेज जीपीए आ जाए, उनकी प्रायोरिटी वो होती है। अब लेकिन माइंडसेट इतना शिफ्ट हो गया है कि आई नो किड्स हु आर नॉट इवन स्टार्टिंग द यूनिवर्सिटी, वो इंटरमीडिएट ए लेवल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सही है, 16-17 साल के बच्चे हैं। उनका माइंड चल रहा है कि यार हमें क्या बिजनेस करना है, वो छोटे लेवल पे ही सही, कैपिटल है नहीं है वो बात की बात है, बट उस वजह से क्या हो रहा है कि जो अब जो जिस माइंडसेट से वो पढ़ने जा रहे हैं ना अंदर, वो जॉब माइंडसेट उनका वैसे ही बैकफुट पे है। एंड आई एम कोटिंग दिस ऑन ऑन रिकॉर्ड इसलिए बिकॉज आई इन द लास्ट 1 year especially I've interacted with so many of these incubation centers, universities, इनके अंदर फाइनल ईयर के स्टूडेंट से लेके फाउंडेशन ईयर के स्टूडेंट से एक स्टार्क डिफरेंस मुझे नजर आना शुरू हुआ है कि अब वो माइंडसेट ही पहले था कि सर इसकी वैल्यू है, आपको याद होगा हमारे टाइम पर होता था यार ये फील्ड पढ़ लो, हाँ इसकी वैल्यू, अच्छा वैल्यू हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन से जो पास ऑन होता क्या था, वैल्यू लिटरली ये था मतलब वैल्यू स्कोप 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 है, स्कोप का मतलब था पैसे कि बस जो जाकिर खान कमेडियन कहते हैं ना कि आपके अम्मा अब्बा जो है वो आपको मतलब गरीब नहीं सक्सेसफुल देखना। देखना चाहते हैं, ये इसमें कोई राय नहीं है, सिर्फ ये कि आपको गरीब नहीं देखना चाहते। हाँ, राइट, मतलब सो इसीलिए। और ये ठीक है। देखें, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस टाइम फ्रेम में थे उस टाइम फ्रेम में उस गरीबी वाले सेक्टर से बाहर आने के लिए आपको फोकस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग ऑफ योर करियर यू शुड फोकस ऑन द मनी। ठीक है, या यस आई एम सेइंग कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, बट वो बाय प्रोडक्ट या बनने में टाइम लगता है। ठीक है, बेशक। क्योंकि ये समझने में कि वो बाय प्रोडक्ट है उसके लिए भी टाइम लगेगा, उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। सही है, लेकिन वो चीज बड़ी अलग थी। दूसरी चीज ये है कि आई विल सेकंड ऑन योर पॉइंट, आई इनवाइटेड पीपल ऑन माई सेशन, they are not even enrolled in universities. ठीक है, some of them were in like first or second semester of the universities. अगर मैं उनकी अमाउंट कोट कर दूं तो जो 35-40 साल के लोग एमबीए और मास्टर्स करके भी बैठे हुए हैं ना, वो उनसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, सो मैं यही बिल्कुल। कह रहा हूं कि आपको अगर कोई चीज लगती है कि वो गलत है, ठीक है, या वो सही नहीं है, या उससे पैसा नहीं कमाया जाता, इसका मतलब आपका एक्सपोजर उसमें कम है। ठीक है, अगर आपका एक्सपोजर उसमें नहीं है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो चीज गलत ही हो। हमारी ऐसा मेंटालिटी ये थी कि अगर मैं बात करूं, मीडिया वाज नेवर हर्ड एज अ वेरी गुड इंडस्ट्री।
स्टिग्मा था, लाइक ऐसे स्टिग्मा था। मेरे पहले मेंटोर जो मुझे मिले, मेरा एक बहुत पर्सनल एक चीज बता रहा हूँ, मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी एडवर्टाइजिंग पे, उस पे इट वाज लाइक कि मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे घर वालों की रजामंदी नहीं है, लेकिन बस मैं जा रहा हूँ, वो भी वैसे बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं ना। एंड व्हेन दैट इंटर्नशिप 1 week had passed by or 2 weeks had passed by, तो उसके बाद वन फाइन डे आई वाज जस्ट टेकिंग अ stroll with my dad, and उस पे my father said कि I have started seeing some good happening for you, and मतलब तुम्हें समझ में भी आ रहे हो, तुम जिस तरह बता रहे हो एनवायरनमेंट का, सब चीजों का, तो वो एक उनको ना तसल्ली चाहिए होती कि भाई वो जो एक वो जो शॉट इन द डार्क गया है हमारे घर से वो डार्क है नहीं, वो एक्चुअली सही है। सो दैट ट्रस्ट केम विद टाइम। लेकिन अब मजाक ही हो गया, घर में भी सारे कमेडियन ही है ना, अम्मा अब्बा वगैरह सब हम हैं ही घर में, स्टैंडर्ड एक वो है। तो उसमें तो वो कहते हैं भाई इसको करियर माशाल्लाह इसका 15 साल का हो गया, मुझे आज तक नहीं पता है करता क्या है। लेकिन he can relate because my father was not in a conventional profession either. So it was a easy journey for me that way. मैं खुद बच्चों को कहता हूँ मेरी किस्मत थी, मेरी luck थी। I'm very blessed that my parents have been super supportive in my choices, whether I pursued my advertising career, whether it was stand up. And then training and development वाली side, public speaking side, वो थी जिसमें मेरे father का बहुत बड़ा support था, because he always admired public speaking and confidence से जाके आप एक room में जाते हैं, so you should be able to go and strike a conversation with somebody. Don't be on that बैकफुट के, नहीं मुझे किस तरह जज करेंगे क्या नहीं है। एंड आई थिंक दैट थिंग स्टक विद मी, क्योंकि वो चीज ऐसी थी कि जब आपने भी बात की थी, बहुत बहुत ही क्रूशल बात है कि जब आप किसी जगह जॉब इंटरव्यू खासतौर पर दे रहे होते हैं, तो आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट हुई भी हो और आप दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, आप चौड़ में जा रहे होते हैं। ठीक है। और अगर आपकी नहीं है तब भी हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। उसमें लोग क्या करते हैं कि दे लेट गो ऑफ दैट, नहीं यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। अच्छा, अब दूसरा पूछता है कि भाई आपके पास अभी जॉब क्यों नहीं है। हैव अ वेरी ऑनेस्ट आंसर अबाउट इट, डू नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड डाउनसाइजिंग, आई हैव एक्सपीरियंस्ड शट डाउन ऑफ बिजनेस, आई हैव एक्सपीरियंस्ड मतलब मल्टीपल काइंड्स ऑफ सिनेरियोज। इन जो जॉब पे बुराई आ सकती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेस की हुई है। तो वो जो पीरियड इन बिटवीन जॉब्स था ना, उसमें हम ये तो देख रहे थे कि अप्लाई करना है, अगली जॉब कैसे लेनी है, लेकिन साथ साथ रिफ्लेक्ट भी करते थे कि अच्छा क्या चीज सही हुई, क्या नहीं हुई, किस तरह हुआ। एंड इन दोज गैप्स आई फाउंड अपॉर्चुनिटी टू ट्राई मोर थिंग्स इन लाइफ। तो कॉमेडी वाज वन ऑफ देम। मैंने ट्रेनिंग वर्कशॉप पहली अपनी जो बनाई थी, वो एक कॉफी शॉप पे बना के दी थी। मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे एक अपना पोस्टर लगाना है, मैं एक वर्कशॉप कराना चाह रहा हूँ, 3 लोग आए इसमें। वो थी पर्सनल ब्रांडिंग एंड हाउ टू इंटीग्रेट ह्यूमर इन डेली लाइफ। वो 8 वीकेंड्स की वर्कशॉप थी, कॉफी शॉप में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा प्लीज ये जगह लेने, हमारे पास भी ट्रैफिक आएगा। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। मैंने खुद से उस टाइम पे की थी जब मेरे पास जॉब नहीं थी। आई वाज जॉबलेस एट दैट टाइम, बिकॉज द लास्ट जॉब आई वाज डूइंग वहां पे डाउन साइजिंग हुई थी। वो पहली डाउन साइजिंग का एक्सपीरियंस था मेरा, दूसरी वाली का आप वाकिफ है। so, अब सीन ये है कि वो पूरे पीरियड जो होता है ना, दिस इज इट्स अ गोल्ड माइन फॉर यू टू बी एबल टू पुश योरसेल्फ टू डू एवरीथिंग यू वांट टू। क्योंकि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, जॉब पे होते हैं, वो यूं बैठे होते हैं, यार बहुत थक गए हैं, कुछ अपना करना चाह रहे हैं, यार बस अगर ये जॉब ना हो, मेरे पास ये रूटीन हो ना, मैं देखो मैं क्या करता हूँ। एंड इट्स ऑल एब्सोल्युटली ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि द मोमेंट यू आर विदाउट इट, आपसे ज्यादा लेजी कोई नहीं होगा। ठीक है, आपसे कुछ नहीं किया जा रहा था, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। आपको जॉब से एटलीस्ट होता है कि रूटीन हुई भी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में मैंने देखा है जो अपना काम कर रहे होते हैं, वो बहुत तमीज से करते हैं। फ्रीलांसर्स में कुछ ऐसे जानता हूँ जिनका डिसिप्लिन मैंने शायद जॉब वालों से बेहतर देखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो ठंड पे होते हैं कि जी मैं तो रात के 4 बजे काम करूंगा, मेरा कंफर्ट टाइम वो है। सो अब वो चॉइस की बात आपने जैसे कही कि बच्चे बहुत सारे, आपने जैसे लोगों से इंटरव्यू भी किए, दे मेकिंग अ लॉट मोर मनी। मेरा सिर्फ कंसर्न एक जगह पे आ जाता है कि मनी वोंट बी एवरीथिंग दैट शुड डू, एंड इफ यू डोंट रियलाइज इट अर्ली ऑन, इट विल बाइट यू वेरी बैडली। ठीक है। हाँ ठीक है, वो शुरू में आपने 2-3 दफा एक चीज कोट की जो शाहरुख खान का बहुत मशहूर था कि भाई फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर, पहले फलसफा ना झाड़ना शुरू कर दो। सो वो आपकी जो बात थी कि बी श्योर ऑफ मेकिंग योर बेसिक्स कवर्ड एंड थिंक अबाउट मनी फर्स्ट। मैं कहता हूँ आप 20 साल भी काम कर चुके हैं, इवन देन कीप मनी इन योर माइंड, बट डोंट कीप इट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ प्रायोरिटी। येस, इट नीड्स टू बी क्रूशियल इन योर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज आप एक आगे देख रहे हैं, चलिए मैं इतना काम करूंगा, इतना टाइम दूंगा, इतनी एनर्जी लगाऊंगा, फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करूंगा, ये करूंगा, सो it better be worth my time. If you are getting exploited, remember the first person responsible for getting exploited is your own self. It's not to blame on anyone else. You said yes to something, which is why you're doing it. Nobody's forcing you to do it. लोग हमारे यहाँ रोना शुरू कर देते हैं, कंप्लेन करते हैं, ओ इट इज सो मच एक्सप्लॉइटेशन। भाई आपके हाथ में एक चीज है, कलम, जिससे आप टाइप कर लेते हैं, आप उसको वॉइस करना सीखें। आप, अब लोग क्या डरते हैं, ये वॉइस करेंगे तो जॉब से निकल जाएंगे। मैं कि भाई आप या तो ये रो लो कि जॉब बहुत टॉक्सिक है, या निकल जाओ। ये जो चीज बीच में फंसे हो, इसमें बोलने से सिर्फ अपनी जात पे आपके नुकसान हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
सो ये वजह से जो अब आजकल जो मेरा सिर्फ जो फियर एक थोड़ा सा है, अब वो आप सही कह रहे हैं, ठीक है, एवरी जनरेशन हैज अ कंसर्न फॉर द नेक्स्ट, कि अनसर्टनिटी होती है तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो, लेकिन मेरा सिर्फ कंसर्न ये होता है कि इफ यू आर एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी बट यू हैवंट रियली स्ट्रक्चर्ड योर लाइफ इनटू वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई योरसेल्फ इनटू, हाउ यू गोइंग टू सर्वाइव इन सोसाइटी, हाउ यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, उस तरह से फिर आपकी एक लॉस्ट डायरेक्शन वाली चीज की वजह से पैसे तो बहुत होंगे आपके पास बट यू वॉन्ट रियली बी एबल टू मैनूवर विद पीपल, आप हो सकते हैं निहायत ही बदतमीज शख्सियत के मालिक हो, पैसे बहुत अच्छे बना रहे हैं, काम बहुत अच्छा करें, सो यू नो दीज आर थिंग्स विच आई फील कि ये आपने जो बिल्कुल शुरू में बात की थी मेंटोरशिप की, ये एक चीज होती है जो आपको थोड़ा सा सेंट्रल कंपस की तरफ रखती है अपने लाइफ में ना, कि भाई व्हाट इज द बिगर पर्पस दैट आई एम गोइंग फॉर, व्हाट इज लाइफ गोइंग टू बी अबाउट, नॉट टू मेक इट साउंड फिलोसॉफिकल हियर राइट नाउ बट दिस इज द रियलिटी। अगर एक बेसिक चीज है जो बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स के जो लोगों ने पढ़ी होगी एंड यहाँ लिंक्डइन पे भी आगे पीछे लोग कोट कर रहे होते हैं, Maslow's hierarchy of needs is a pyramid that is taught in the first course of principles of management in any business school worldwide. मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या कहती है, सबसे पहले इंसान की क्या जरूरत है, अगर मैं आपसे पूछूं मैं, जरूरत क्या है सबसे पहले, भाई मुझे सर्वाइवल के लिए खाना पीना चाहिए, ठीक है, आपको पता है खाने पीने के बाद अगली चीज सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए आपको, जॉब चाहिए होगी, मतलब पैसा चाहिए जॉब, होगा। सर्वाइवल मतलब उसी में आ गया ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है या फाइनेंशियल वो है फैमिली, उसका, इमोशनल फैमिली के हिसाब से कुछ चाहिए। इमोशनल फैमिली आ गया ना, पहले आपका ये है, उसके बाद बंदा सोचता है कि मेरे पास एजुकेशन हो या एक वो हो तो फला हो, फिर आप और ऊपर जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये बेसिक जो है इस तह पे ही अगर आप मास मेजोरिटी मार्केट देखें तो मेरा पर्सनली कंसर्न ये होता है कि आई नो देयर आर पीपल हु आर मेकिंग मिलियंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग राइट, बट इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी वेयर यू आर मेकिंग मिलियंस, लेट्स से डूइंग रिमोट वर्क, आप डॉलर्स में पैसे भी कमा रहे हैं, कह रहे हैं भाई बहुत अलग काम, बट अगर आपका मोहल्ला बाहर बिल्कुल ऑफ हो रहा है, इज देयर समथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट, वो सेंस होना आप में जरूरी इसलिए बिकॉज सी इफ यू आर नॉट गोना डू इट नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट ओल्डर, द नेक्स्ट जनरेशन इज गोना कम, आपकी उस सोसाइटी में आप ऑपरेट कैसे करेंगे, अब हम लोग क्योंकि कराची में रहते हैं सो वी आर ऑन द फार रिसीविंग एंड ऑफ दिस, राइट, कि आप अपने अपने इर्द गिर्द का किस तरह से आप फायदा कर रहे हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो लगा भी रहे हैं, किस तरह लगा रहे हैं, क्योंकि देखें मैस्लो के उसमें ही लिखा हुआ है कि यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अब कोई लोग कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, कोई कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई एक उमेर भाई की गपशप कम्युनिटी, लोग इसमें इसलिए आते हैं कि दे फील गुड अबाउट कि अच्छी बातें होनी वो नहीं, चलो यू नो आई बिलोंग टू समथिंग गुड, तो अभी की आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, those things have to translate somewhere for you to be able to do something bigger, और वो ठीक है, आपने जो बात की कि हर कोई सीईओ नहीं बनना चाहता, ना बनो, बट एज एन इंडिविजुअल कैन यू डू समथिंग गुड फॉर द इर्द गिर्द और अराउंड यू। मैंने ट्रेनिंग्स का काम क्यों लिया था, दिस वाज समथिंग, मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद बहुत रिचेस के साथ ना नवाजा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल बेटर ऑफ मेनी पीपल, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह, बट मुझे एक अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, उस सलाहियत से क्या मैं लोगों का फायदा कर सकता हूँ, कैन आई हेल्प देम बिकम बेटर और एटलीस्ट improve their lives in whatever manner, तो ट्रेनिंग वाज वन थिंग व्हिच आई रियली लाइक वॉलंटरली टुक, मैंने शुरू की जॉब्स में ही शुरू कर दी थी कि भाई तुम लोग अच्छा, चाहे वो कंटेंट राइटिंग की ट्रेनिंग हो रही है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग की हो रही है, मैंने शुरुआत इससे की थी, ग्रेजुअली उसमें फिर वो कोचिंग भी शुरू हो गई लोगों के साथ, एंड आई एम नॉट समवन हु सर्टिफाइड इन एनीथिंग, पीपल जस्ट कम टू मी विद देयर challenges और issues because they trust me with maybe I can help them better, तो ये एक चीज बहुत जरूरी है कि हर किसी के पास कोई एक ऐसी चीज हो जिससे कर सके, अब उमेर का मुझे जो आपकी मैं अगर पर्सनली बात करूँ, नॉट बिकॉज आई एम गिविंग यू नो टॉक ओवर हियर, कोई बात हमारी चल रही है आपस में इस पे, बट आई जेन्युइनली फील वेरी हैप्पी टू सी दैट उमेर का एक प्रोफाइल जो मैंने देखा एज अ प्रोफेशनल इज समथिंग completely different from doing what you're doing right now, it's completely different but you chose to do this because you and I know a little back story because आपने मुझे जब अप्रोच किया था तो आपने बताया था कि शुरुआत कहाँ से हुई थी गपशप की, it started from a good cause, it started from a good purpose, you felt that need कि मुझे ये करना है, and now look माशाल्लाह how you know vast yeah, you've come a long way over here, right, तो वो चीज जैसे आपने की वही चीज मैं नेक्स्ट जनरेशन को भी इंकरेज करता हूँ कि देखो कहीं ना कहीं अपनी स्किल को ऐसा भी रखो विच यू कैन कंट्रीब्यूट विद, अभी इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं बहुत ज्यादा, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर वो अपना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, यू नो ब्रांड्स उनको कैंपेन्स देने सब, बट यू सी दैट दे आर डूइंग अ लॉट मोर ऑफ स्टोरी टेलिंग अबाउट मेनी थिंग्स जिसके अंदर बहुत बेसिक चीजें होती हैं, अभी मैं एक बल्कि रिसेंट मैंने देखी, मैं आई कोट इट टू यू, बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो क्या थी कि यार हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ना बड़ा टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड होते हैं अक्सर ना, कि गूगल मैप कैसे यूज करना है, ये फला कैसे यूज करना है, देयर इज अ क्रिएटर हु मेड एन एंटायर थिंग अबाउट जस्ट कि भाई मेरी अम्मा को मैप्स का मसला होता है तो मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ कि कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, राइट, इट्स अबाउट यूजिंग व्हाट यू हैव टू बी एबल टू हेल्प पीपल
you know, in some way, and that is how you'll build on a better society. और हर किसी का लॉन्गर कॉज ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो आप एक स्टक हो जाएंगे उसी में। जो उमैर कह रहे थे ना, मैं हर महीने काम करता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तनख्वाह आनी बंद हुई या पैसे आने बंद हुए, अचानक से आप पैनिक अटैक में चले जाते हैं। यू डोंट हैव अ बिगर पर्पस टू गो फॉर। दैट्स समथिंग व्हिच आई रियली encourage कि होनी जरूरी है, एंड दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, इट डजंट जस्ट अप्लाई टू द जेन जीज, इट्स फॉर एवरीवन आई थिंक। Fair enough. I think we have discussed a lot of good pointers, and that gives a different perspective towards life. कि सही है, नौकरी को उस तरीके से देखना है, लाइफ को इस तरीके से देखना है. But thank you so much, Faraz. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. Just for the audience, if you want to reach out to Faraz, you can reach out to on LinkedIn, and I'm pretty much sure फराज ने मुझे तो खैर इसलिए रिप्लाई करा कि वो मेरे दोस्त हैं, बट वो अच्छे इंसान है. आप उनको मैसेज करेंगे, वो आपको भी रिप्लाई करेंगे. सो थैंक यू सो मच फराज. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेशन. Thank you so much for having me, Umair. And once more, you're doing a fantastic job here. And I wish you all the best with more gupshup and more variety of people. I'm someone who actively follows you as well. So keep it up, yeah.